بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ اہم خبر آپ کو دیں، ترکی کا اسرائیل سے اقتصادی تعلقات ختم کرنے اور فضائی حدود بند کرنے کا اعلان۔ ترکی نے اسرائیل کے خلاف بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے اقتصادی تعلقات منقطع کرنے اور فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کرتے چلیں، ترکی کا اسرائیل سے اقتصادی تعلقات ختم کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ ترکی نے اسرائیل کے خلاف بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے اقتصادی تعلقات منقطع کرنے اور فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترک وزیر خارجہ نے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا یہ اقدام غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ ترکی کا اسرائیل سے اقتصادی تعلقات ختم کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے اور ترکی کا اسرائیل سے اقتصادی تعلقات ختم کرنے کا اعلان ہے۔ ترکی کا اسرائیل سے یہ اعلان سامنے آیا ہے جس میں اقتصادی تعلقات ختم کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور جہلم ویلی بھارت کی جانب سے دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ 27 اگست کو بھارت کی جانب سے پیشگی اطلاع دی گئی تھی۔ پانی کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ڈی ڈی ایم اے جہلم ویلی اور وابڈا کے مطابق لائن آف کنٹرول چکوٹھی کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ مظفر آباد، ہٹیاں بالا اور منگلا کے اطراف کے علاقوں میں پانی کی سطح مزید بلند ہو سکتی ہے۔ مظفر آباد، ہٹیاں بالا اور منگلا کے اطراف میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ دریائے جہلم سے متعلق آپ کو بتائیں، لائن آف کنٹرول چکوٹھی کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ جہلم ویلی میں بھارت کی جانب سے دریائے جہلم میں پانی چھوڑا گیا ہے۔ اس متعلق مزید بتائیں، لائن آف کنٹرول چکوٹھی کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ مظفر آباد سے خبر ہے، ہٹیاں بالا اور منگلا کے اطراف میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی وارننگ، شہری باخبر رہیں۔ اگلے 4 گھنٹوں میں بالائی اور وسطی پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کا امکان ہے۔ سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، گجرات اور فیض آباد میں بارش متوقع ہے۔ سرگودا، خوشاب، میاں والی، جھنگ اور قصور میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ چند مقامات پر موسلادھار بارش کا خدشہ ہے۔ عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب کے 3 بپھرے دریاؤں راوی، چناب اور ستلج نے تباہی مچا دی۔ دریاؤں کے کنارے آباد بستیاں اور فصلیں زیر آب آ گئی، جبکہ ہزاروں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کے پیش نظر جھنگ اور چنیوٹ کو بچانے کے لیے رواس برج کے قریب بند میں دھماکے سے شگاف ڈال دیا گیا۔ صوبے میں سیلاب کے باعث 20 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ سیالکوٹ میں ڈوبنے والے افراد کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ راوی بپھرنے سے لاہور کے کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی زیر آب آ گئی۔ ننکانہ، شیخوپورہ، ٹوبہ ٹیکسنگ کے دریائی بیلٹ کے علاقوں کو فوری خالی کروانے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ دریائے چناب میں سیلاب سے سیالکوٹ 395 کے، جھنگ 127، ملتان 124، چنیوٹ 48، گجرات میں 66، خانیوال میں 51، حافظ آباد 45، سرگودا 41 اور منڈی بہاؤدین میں 35 موضوع جات متاثر ہوئے۔ دریائے راوی میں سیلاب سے کل 80 موضوع جات زیر آب آ گئے۔ نارووال میں 75، شیخوپورہ میں 4 اور ننکانہ میں 1 موضوع متاثر ہوا، جبکہ دریائے ستلج میں سیلاب کے باعث کل 361 موضوع جات زیر آب ہیں، جن میں قصور کے 72، اوکاڑا 86، پاکپتن 24، ملتان 27، وہاڑی 23 اور بہاول نگر کے 104 موضوع جات شامل ہیں۔ دریائے سندھ میں گڈو اور کشمور کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافے سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ جھنگ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے پر سیلاب کی شدت کو کم کرنے کے لیے چنڈ بھروانہ کے قریب بند کو برج کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ پانی کی بڑھتی ہوئی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے بند توڑنے کے لیے اجازت نامے پر دستخط کیے۔ جنڈ بھروانہ کے راگوانا مقام پر ریلوے ٹریک کو دھماکہ خیز مواد سے 3 مقامات پر اڑا دیا گیا۔ سیلاب کے باعث ٹھٹا مالا، کوڑیانہ، دادوانا، پکے والا، دربار شیخ علی اور موسا کلکورالی کے علاقے متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور قصور بھارت کی جانب سے ہری کے ہیڈ سے چھوڑا گیا سیلابی ریلا ضلع قصور کی حدود میں داخل ہو گیا۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح گزشتہ 38 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ کر 24 فٹ کے قریب پہنچ گئی ہے، جس کے باعث سرحدی گاؤں ساندہ نظام کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز میاں کاشف سے۔ جی کاشف، بتائیے گا۔ ستلج میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو انتہائی تشویشناک صورتحال جو ہے وہ اس وقت ہو چکی ہے۔ PDM ذرائع کے مطابق اس وقت دریائے ستلج میں جو ہے وہ 3,27,000 کیوسیک کا پانی کا بڑا سیلابی ریلا اس وقت جو ہے ہیڈ گنڈا سنگھ سے گزر رہا ہے، اور ہر طرف جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے عقب میں بھی جو ہے وہ پانی ہی پانی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ لوگوں کی فصلیں، مکانات سبھی جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں۔ میں اس وقت ساندہ نظام گاؤں کے بالکل پاس موجود ہوں،
यहाँ पर बात की जाए तो इस साइड पर आप देख रहे हैं कि दरियाए सतलुज का बड़ा सैलाबी रेला, जबकि बिल्कुल इस बंद के दूसरी साइड पर जो है वो सांदा निजाम गांव है। यहाँ पर मेरे साथ सांदा निजाम गांव के इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। बन जो है ना 3-4 जगह से सैलाब मार रहा है, ये हो सकता है टूट सकता है। करोड़ों रुपए की जो फसलें झोला मकई इतने ये सारियां चीज़ां जड़ियां ने इस टाइम फुल तबाह हो गई हैं। यहाँ पर जी आपने इस इलाका मकीन की बात सुनी है, सांदा निजाम गांव के रहायशी, इनका यही कहना है कि हमारा गांव भी जो है वो मुतासर होगा और उससे आगे जो दर्जनों देहात हैं वो भी इस वक्त जो है वो खतरे की घंटी जो है वो बज रही है और किसी भी वक्त जो है ये बंद टूटकर जो है वो दर्जनों देहात भी जो है वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। जी कंगनपुर दरियाई सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से सूरत हाल संगीन हो गई। दरिया बिफर गया और दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी रैली ने कई हजार एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी। किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जिला इंतजामिया ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए, जहां मुतासरा खानदानों को खुराक, अद्वियात और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ABN न्यूज़ के नुमाइंदा अल्ताफ़ हुसैन से। जी अल्ताफ़, मजीद बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंगनपुर कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर, जहाँ पर भारत की जानब से अभी जारियत का जो है सिलसिला वो जारी है। इस वक्त मैं मजीद आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ पर जो है 2,61,000 का रेला गुजर रहा है और जो है गहराई है पानी की वो 22 फुट तक बताई जा रही है। अगर बात की जाए इंतजामिया की, यहाँ पर जो है पुलिस के जवान भी जो है सलाब ज़दगान के साथ जो है वो काम करते दिखाई देते हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर DSP रियाज फंगा साहब मौजूद है। मजीद हम उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, जनाब इंस्पेक्टर जनरल की हिदायत के मुताबिक जनाब DP साहब की क़यादत में पूरा ज़िला हम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर भी मेरे पास 150 जवान मौजूद हैं। हम बाहर से लोगों को वैक्यूएट कर रहे हैं जो दरिया पार हैं, और उनका माल जो है वो भी हम इधर ला रहे हैं। मजीद इंशाल्लाह उनके जैसे भी उनको ज़रूरत हुई हम हाजिर हैं। जी, जैसा कि आपने DSP साहब की बात सुनी, DSP साहब का कहना है कि जो दरिया के पार लोग हैं हम उनकी मदद के लिए पेश हैं। जी DGP DMA इरफान अली काठिया कहते हैं चिन्योट में दरियाई बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली कराने की हिदायत जारी की गई हैं। 72,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। वज़ीर आला का हुक्म है आबी गुजरगाहों को खाली कराया जाए। सैलाब मुतासर इलाकों में तालीमी इदारे एक हफ्ते बंद रखने पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा मौसमाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखे बगैर तरक्याती काम करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से हर शख्स के लवाकिन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब तक 3 लाख से ज्यादा मवेशियों को महफूज बचाया गया है। लाहौर में रावी में बनाई गई नई हाउसिंग सोसाइटियां सैलाब से बुरी तरह मुतासर। शादरा, शेखुपुरा और लाहौर के नवाई इलाकों में कायम की गई नई हाउसिंग सोसाइटियों में सैलाबी पानी तेज बहाव के बायस घरों में दाखिल हो गया। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी खड़ा है, जिससे रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि बिजली और दीगर सहूलियात भी मुतासर हुई। पानी की सतह बुलंद होने से महफूज गार्डन, थीम पार्क, शफीकाबाद, फर्रुखाबाद, मुरीदवाल, अजीज़ कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी और तलत पार्क व्यू बुरी तरह मुतासर हुई। कई बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों के बाज़ ब्लॉक भी सैलाब की लपेट में आ गए। शकरगढ़ से खबर है, करतारपुर दरबार और इसके अहाते से सैलाबी पानी मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है। दर्शन ड्यूटी और कम्प्लेक्स के दीगर हिस्सों में सफाई का काम तेजी से जारी है। मैनेजमेंट कमेटी के मुताबिक दरबार कम्प्लेक्स की सफाई के लिए 100 से ज्यादा एहलकार मामूर हैं, जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। करतारपुर की दाखिली शराह पर अब भी पानी मौजूद है, ताहम ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। शेरपुर शरीफ के नवाई गांव में सैलाबी पानी की सतह बुलंद होने से सड़क टूट गई, जिसके बायस मुल्क आबादी को शदीद खतरात लाहक हो गए। सड़क टूटने के बाद सैकड़ों एकड़ ज़रीए ज़मीन से आब आ चुकी है, जबकि मडा टाउन और दीगर करीबी रिहायशी इलाके भी मुतासर हो रहे हैं। मुकामी लोग अपने घरों से महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। उधर आंधी और मूसलाधार बारिश ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। ताहाल इंतजामिया की कोई टीम मौका पर नहीं पहुंची, जिस पर अवामी हल्कों में तशवीश पाई जा रही है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो सैलाबी पानी शरकपुर की आबादी में दाखिल हो सकता है। सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली में 29 अगस्त तक की पेशरफ्त के हवाले से पावर डिवीजन की रिपोर्ट जारी कर दी गई। पेस्को के इलाके सवात, बुनीर और शांगला, सवापी और DI खान के 12 ग्रिड्स 91 फीडर्स मुतासर हुए। पेस्को के 79 फीडर्स मुकम्मल और 12 जुज़वी तौर पर बहाल हुए।
रिपोर्ट पावर डिवीजन के मुताबिक गैपो के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों सियालकोट, नारोवाल, वसीराबाद और हफ्साबाद के 10 ग्रिड्स और 86 फीडर्स मुतासर हो गए। गैपो के 62 फीडर्स मुकम्मल और 19 जुज़वी तौर पर बहाल। लेस्को में लाहौर, कसूर और अकाड़ा के 40 मुतासा फीडर्स जुज़वी तौर पर बहाल। मुकम्मल बहाली 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुतवक्के। फेस्को के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों चनियोट, झंग, सरगोदा, मियांवाली और DI खान के 15 ग्रिड और 43 मुतासा फीडर्स आसी तौर पर बहाल। मैपको के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में 11 ग्रिड्स और 63 फीडर्स मुतासर। मैपको के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में पानी उतरते ही मुतासरा फीडर्स की बहाली का अमल फौरी शुरू होगा। टेस्को के इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान के 2 मुतासरा फीडर्स आरजी तौर पर बहाल कर दिए गए। मुकम्मल बहाली 5 सितंबर तक मुतवक्के है। उच्च शरीफ में दरियाए सतलुज का सैलाबी रेला बेकाबू हो गया। परान वाला ज़मींदारा बंद टूटने से मोटरवे M5 को भी शदीद खतरा लाहक हो गया। दरियाए सतलुज में तेज़ बहाव के बायस परान वाला ज़मींदारा बंद टूट गया, जिसके नतीजे में सैलाबी पानी तेज़ी से वधनौर, भिंडा वेनेस, बस्ती हसाम और बस्ती समयाज की तरफ बढ़ने लगा है। सैलाबी रैली ने सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों को तबाह कर दिया। मोटरवे M5 के दोनों तरफ पानी का दबाव बढ़ गया और सैलाबी पानी मोटरवे M5 से टकरा गया, जिससे ट्रैफिक और स्ट्रक्चर को खतरा लाहक हो गया। मुकामी आबादी ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी है। हरिपुर खानपुर डैम में पानी की सतह खतरनाक हद से तजावुज़ स्पिलवेज हंगामी तौर पर खोल दिए गए। खानपुर डैम में मुसलसल सैलाबी रैलों की आमद पानी की सतह हाई लेवल से एक बार फिर तजावुज़ कर गई। डैम इंतजामिया के मुताबिक 6ठी बार स्पिलवेज हंगामी तौर पर खोल दिए गए ताकि इजाफी पानी को खारिज किया जा सके। 6800 क्यूसेक की रफ्तार से पानी का अखराज जारी है। इजाफी पानी नदी हरों के रास्ते दरियाई अटक में छोड़ दिया गया है और डैम में पानी की मुकर्ररा हद 1982 फीट है। डैम इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। नदी हेरो, स्पिलवेज और दीगर आबी गुजरगाहों के गेट पुलिस और रेस्क्यू एहलकार तैनात है। तरनावा पुल जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाता है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और वसी तर मफाद के पेश नज़र ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में दरियाओं और नदी नालों के किनारों पर जाने और तामीरात करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मुज़फ़्फ़राबाद के जारी करदा एलामिया के मुताबिक दरियाओं के दोनों अतराफ 100 फीट तक और नदी नालों के दोनों अतराफ 30 फीट तक किसी भी किस्म की मिल्कियती या गैर मिल्कियती अराज़ी पर नई तामीरात या तौसीही तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। एलामिया में मज़ीद कहा गया है कि पाबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़ेर दफ़ा APC 188 कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये पाबंदी 2 माह के लिए नाफिजुल अमल रहेगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। SPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सियालकोट सेक्टर शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का जायजा लिया। सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौज और सिविल इंतजामिया की काविशों को सराहा। इस मौके पर फील्ड मार्शल का कहना था कि सैलाब से मुतासर तमाम मजहबी मकामात बशमूल दरबार साहब करतारपुर को तरजीह बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। दरबार साहब करतारपुर समेत तमाम मकामात असल हालत में बहाल होंगे। रियासत अक़लियतों के हकूक़ और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरजोश खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने एरिया का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। सिविल इंतजामिया के बरवक्त इक़दामात को सराहा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सियालकोट समड़ियाल एयरपोर्ट चौक पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इलाके में सैलाबी पानी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने सियालकोट में सैलाब और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम की काविशों को सराहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुतासिरीन को रेस्क्यू करने के लिए सियालकोट इंतजामिया की शब रोज़ काविशों को भी सराहा। सैलाबी पानी ने लाहौर में रावी से मुल्हिका रहायशी आबादियों में तबाही मचा दी। अब भी कई लोग घरों की छतों पर महसूर हैं। तकलीफ कहानियां सामने आ रही हैं। हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर उमरदराज गोंदल फर्रुखाबाद के इलाके में एक ऐसी ही दुखी शख्स के साथ मौजूद हैं, जिसकी बेटियों की 2 महीने बाद शादियां थी। जहेज का सामान सैलाब की नजर हो गया। जी उमर बताइएगा। लाहौर का जो रावी का मुल्हिका इलाका है, नवाही इलाका है फर्रुखाबाद, वहाँ पे मौजूद हूँ। ज़रा कैमरामैन अली आपको दिखाएंगे कि मैं एक दीवार पे हूँ। पानी इससे बहुत गहरा है। ये पानी रावी में से आ रहा है। इसकी जो स्पीड है वो आपको बताएगी कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। आगे नौजवान वो नज़र आ रहा होगा, वो आधा गेट और खुद नौजवान डूबा हुआ है आधा तकरीबन। आगे घर जो है उसमें पानी ही पानी है। अगर ये दरवाज़ा बंद था, ये अभी मेरे सामने इन्होंने दरवाज़ा खोला है। इस तरह दरवाज़ों को ताले लगे हुए हैं। आगे भी यही सूरत हाल है, दरवाजे बंद हैं, ताले, और घरों में पानी है। आपको छत के ऊपर लोग महसूर नज़र आ रहे हैं। हमने रावी की उस तरफ भी देखा है कि यही सूरत हाल है। यहाँ पे ट्रेजिडी है। एक गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है दावे ज़रूर कर रही है। पानी जिस रफ्तार से आगे जा रहा है आपको पता है। ये रावी का बराह रास्त पानी यहाँ से इस तरफ से जहाँ मैं खड़ा हूँ उस तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ ये जो साहब खड़े हैं, इनका सामने इन्होंने मुझे बताया वो घर है।
यहाँ सिर्फ नुकसान ये नहीं है कि आप पानी कहें, यहाँ ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि आपका जो दिल है वो दहल जाता है। इन्होंने मुझे बताया कि इनकी बेटियों की शादी है और आज से 2 महीने के बाद जिन बेटियों की शादी है वहाँ पे जो जहेज का सामान था इनके मुताबिक वो सारे का सारा डूब गया, दीवारें गिर गई हैं। कौन सा घर है आपका? वो ब्राउन गेट वाला। और आप मुझे बेटी की शादी का बता रहे थे? जी जी, कब है? दो बेटियों की शादी थी। कब है वो? ये 10वें महीने में थी। 10वें, अभी 8वां महीना है और 10वें महीने में है, तो सामान सारा अंदर है? सामान पीछे से द्वारें टूट गई हैं ना, पिछली साइड से उधर से निकल गया सामान सारा, द्वारें टूटी हुई हैं। ये फ्रंट ही नजर आ रहा है, पीछे से कुछ भी नहीं है। ये कहानियां हैं। इस तरह से आपको लोग जो है सारे नौजवान आपको इस तरफ नज़र आ रहे हैं, लोग खड़े हैं। ये यहाँ की कैफियत है, यानी ये वो इलाके हैं जहाँ पे पानी ही पानी है और यहाँ से शुरू होने वाला पानी जो है वो आगे जो निजी सोसाइटियाँ हैं और आगे चूंग तक की जो सूरत हाल है, ये मैं इस वक्त आपको मंजर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ समझे मैं एक दीवार के ऊपर हूँ। पानी ये जिस जगह पे नौजवान खड़े हैं ये ज़्यादा गहरा पानी है, ये दीवार है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, तो ये ग्राउंड की सूरत हाल है।